Welcome to the Chemistry Live channel. Today we are discuss a most important topic for day-to-day life, day-to-day practical life, and day-to-day theory life in chemistry section. The topic is solution. So how it's work? How the solution is? So what is the solution? What is the type of solution? Then what is the concentration term? That we discussed in that first section of the solution portion. Let's begin with the topic which we are going to discuss about solution term, which kind of solution is available and how solution is prepared, what is solution. Second, type of solution, how many types of solution. Third, concentration, it means what is the concentration and all. Fourth one is concentration term type, how many types are available in concentration. Fifth one is concentration term, which is temperature dependent. So let's begin with the solution portion itself. So what is the solution? You have to that idea in your mind. कि ये solution क्या है? So actually the solution is when you put a solvent and a solute into the beaker and you get something. It's called solution. So it means what is the solvent? Which is higher in amount. What is the solute? Which is lower in amount. So here you also see the change the picture because solute is complete, empty. And then the last one is what is the solution? That is our whole. So when you add whole solvent and solute into that beaker, you see here the downside there is a little bit solute is unreacted. But how we can react in how we can change the solution of color? So we can stir it thoroughly, and then when you stir it thoroughly, what we get? We get here the solution. It is that color. So what is meant by solution? The solution is nothing but it's a mixture of solvent and solute. So might be that is very important for you. Solution क्या है? Solution जो है वो solvent और solute जो है उन दोनों का true mixture है. It's a true mixture. It's called true solution. Okay. So now we'll switch to the type of solution. So basically इसमें से दो ही type है. The first one is homogeneous, second one is heterogeneous. So homogeneous और heterogeneous के बारे में डिटेल में अब डिस्कस करते हैं कि homogeneous क्या है? Having a uniform composition and properties throughout the solution. What is meant by uniform composition and properties? अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने परफ्यूम देखा होगा. If you spray a perfume, आप परफ्यूम स्प्रे करते हो ना विदाउट शेकिंग वेल, तो भी स्मेल सेम ही आती है. कभी परफ्यूम की बोतल तोड़ोगे ना, आप कभी भी तोड़ोगे परफ्यूम की बोतल, एंड इफ यू आर टेक एनी पार्ट ऑफ द परफ्यूम फ्रॉम दैट वन एंड यू spread on your cloth and smell it, it's same. So it's called homogeneous solution. The another best example, in the summertime we are always worried about like low blood pressure and all, so we take नींबू पानी और शिकंजी. So the शिकंजी is what? शिकंजी क्या है? शिकंजी कुछ नहीं है. शिकंजी में हम पानी मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, some amount of salt, हम उसको मिक्स करते हैं, become it's homogeneous. तो होमोजीनियस होता है, उसकी वजह से वो क्या होता है? आप किसी भी शिकंजी ऊपर से ले लो, नीचे से ले लो, कहीं से भी ले लो, यू हैव टू सेम टेस्ट. ठीक है, बिकॉज दे आर ट्रू सॉल्यूशन, दे आर मिक्स टुगेदर, द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन. इस टर्म को डिफाइन करता है होमोजीनियस टर्म को. एक और एग्जाम्पल अगर आपको लेना है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, इफ वी टेक कोल्ड ड्रिंक्स, तो क्या होगा? बॉटल खोलो, कहीं से भी एक सिप ले लो, द सेम. इवन द कप ऑफ कॉफी, कॉफी आपने बना दी, फिर कहीं से भी एक सिप ले लो. इट इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन बिकॉज द टेस्ट इन होल द सॉल्यूशन इज सेम. सो व्हाट इट मीन टू से, मैं आपको इससे ये समझाना चाहता हूँ कि जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट द मिक्सचर. इट्स कॉल्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन. सो होमोजीनियस के बारे में तो बात हमने ये कर ली. अब हम स्विच करेंगे हेट्रोजीनियस के बारे में. हेट्रोजीनियस में क्या है? इस कंसिस्ट ऑफ विजिबली डिफरेंट सब्सटेंस और अ फेस. अब विजिबली डिफरेंट सब्सटेंस और फेस का मतलब क्या है, ये भी आपको समझाना इतना इंपॉर्टेंट है. अब देखो, आप समझो. अब हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में आपने देखा होगा कि आप जो है पहले कोई ऐसे कंपोनेंट पानी में डालो जो सॉल्युबल ना हो, जो सेपरेट आपको दिखे. इट्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. उससे भी अच्छा सोचो, उससे भी अच्छा अगर हम सोचते हैं तो सपोज अभी जो है अभी की सिचुएशन में इफ यू टेक एनी नमकीन पैकेट, अब बहुत सारे इंग्रेडिएंट इनसाइड मिक्स होंगे, तो ये हो सकता है कि आपको ऊपर से आलमंड कैश्यू मिले, नीचे से ना मिले, नीचे से मिले, ऊपर से ना मिले. सो इट मीन्स ऐसे जो भी सॉल्यूशन होते हैं जिसमें ऊपर कंसंट्रेशन कुछ और होता है, नीचे कंसंट्रेशन कुछ और होता है, दैट मीन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. सो ये बहुत ही बेसिक फंडा था कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या है, हम इससे कैसे डील करते हैं. दैट वी वांट टू लर्न, हमें ये पढ़ना था. देन वी विल डिस्कस दैट अमाउंट.
अब जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की। जो कंसंट्रेशन टर्म है ना, इट्स सेल्फ इज वेरी यूनिक प्रॉपर्टी। विदाउट कंसंट्रेशन टर्म इन केमिस्ट्री लाइक एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, अब एक कंसंट्रेशन टर्म क्या है, चलो उसको एक बार जानते हैं। फर्स्ट वी हैव क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन? द कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट की अमाउंट है dissolved in per liter volume of solution or per kilogram weight of solvent. So per liter volume of solution में और per kilogram weight of solvent में जितने amount of solute dissolve होता है, then we call concentration. Concentration two type के होते हैं. There is two type of concentration. The first one is time dependent. The second one is time independent. So what is time dependent? Because the volume has time dependent term, so in the time dependent concentration term we will use the volume related term, and in time independent we are use the mass related term. So in the volume related term, so first we'll take a look the volume related term. It means time dependent concentration terms. So 7 type की time dependent concentration term है जिसमें volume है. So हम पहले उसमें देखेंगे परसेंटेज V by V, परसेंटेज W by V, मोलारिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, ppm V by V, ppm W by V. ये ppm वाली टर्म्स जो है वो थोड़ी यूनिक है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे. देयर इज नॉट मोर चेंजेस देन द परसेंटेज V by V एंड परसेंटेज W by V. सो इस वीडियो में हम ये 7 टर्म पढ़ेंगे. अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, जो है परसेंटेज W by W, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड ppm W by W. अभी जो टर्म है ना उसमें 2 टाइप के रिलेशन है. पहला एक रिलेशन है कि जो टाइम इंडिपेंडेंट टर्म के अंदर इट सेल्फ रिलेशन है, और दूसरा रिलेशन जो है वो दोनों टर्म में इंटर रिलेशन है. ये 2 रिलेशन भी हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में डेफिनेटली पढ़ेंगे. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारी टाइम डिपेंडेंट जो टर्म है उसको. उसमें पहला टर्म जो होता है वो है परसेंटेज V by V. परसेंटेज V by V एक्चुअली क्या है? So percentage V by V means a volume of solute in ml dissolved in per ml volume of solution and we multiply with 100 is called percentage V by V. Let assume, अब हमें ये assume करना है कि हमें ये वाली जो percentage V वाली जो term है वो हमें दे दी गई है, given. इफ इट्स गिवन तो हमें ये वाली जो टर्म है वॉल्यूम सॉल्यूशन उसको हमें 100 ml ही लेना है. ओके, ये इसको एज्यूम करो. द रेस्ट ऑफ द थियरी विल बी वेरी इजी फॉर यू. बहुत ईजी हो जाएगा ये आपके लिए पढ़ना. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वन एग्जाम्पल ऑफ परसेंटेज V by V. सो व्हाट इज द एग्जाम्पल? लेट्स सी. So determine the volume by volume percentage solution made by combination of 21 ml of methanol with enough water to produce 300 ml of solution. अब यहाँ पे हमें 2 टर्म दी गई है. पहली टर्म जो हमें मिली है वो है 21 ml of methanol. तो सॉल्यूट कौन सा है इसमें, पहले हमें ये डिफाइन करना होगा. सॉल्यूट जो है वो मिथेनॉल है और सॉल्वेंट जो है वो वाटर है. ठीक है, सॉल्यूशन कितना बनेगा वो बता दिया गया है. 300 ml सॉल्यूशन बनेगा. सो अब ये 300 ml जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें हमें परसेंटेज V by V मिथेनॉल के निकालना है. कैसे निकालेंगे हम? तो सिंपल है, जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो यहाँ पे रख दो, वो भी ml में है और 300 भी ml में है. इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम जैसे ही, सो विल गेट 7 एंड दैट इज एक्चुअली अवर आंसर. तो यही है 7. परसेंटेज बाय परसेंटेज, जो परसेंटेज V by V जो हमें मिला है वो 7% मिलता है इन द केस ऑफ मिथेनॉल व्हेन यू डिसॉल्व 21 ml मिथेनॉल इन इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 300 ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. सेकंड हम देखेंगे परसेंटेज W by V. ये एक वेट के रिलेटेड टर्म है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लोगे और उसे ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो आपको जो टर्म मिलेगी उससे मल्टीप्लाई करने के बाद यू हैव टू गेट परसेंटेज W by V. सो परसेंटेज W by V यहाँ पे भी वही है, हमें परसेंटेज W by V इज गिवन टू अस. अगर ये एग्जाम में हमें या कहीं और पे हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये गिवन है. अगर ये टर्म गिवन है तो हमें इस टर्म को यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमें 100 लेके ही चलना है.
सो वी विल गेट इजी द सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, सो इसके डिपेंड पे भी एक है एग्जाम्पल, वो हम देखेंगे आराम से इसको। 1 लीटर ऑफ एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन 35 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, 1 लीटर है सॉल्यूशन, एक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसमें 35 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड है। सो व्हाट इज द W/V परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर 100 ml? ग्राम पर 100 ml मांगा है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि सॉल्यूट का मोल कितना दिया है, 35 दिया है, सॉल्यूट का जो वे है वो 35 दिया है। कितने सॉल्यूशन है, 1000, अब ml में है तो कितना होगा, 35 ml हमारा ग्राम है, सॉल्यूशन 1000 में है हमारे पास, तो इंटू 1000 इंटू 100 हमें करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, सो हमें डायरेक्ट 3.5 मिल जाएगा। कितने में हुआ, 100 ml में। दैट इज आवर आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट मोर। थर्ड जो हम बात करेंगे वो है मोलारिटी, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मोलारिटी इन द टर्म्स ऑफ दैट प्रैक्टिकल। बहुत ही ज़्यादा हम पूछते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन बनाओ, 2 मोलर सॉल्यूशन बनाओ, इट इज़ डिपेंड ऑन दैट। मोलारिटी है क्या, वो हमें समझना है। सो मोलारिटी इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इज N/VL। सो इसकी जो एक अगर हम टर्म में लिखे तो N/VL लिख सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम इन लीटर है तो हम V/L लिखते हैं। नाउ हमें ये N की वैल्यू क्या है वो डिफाइन करनी है। सो व्हाट इज द N? सो N इज अ वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से हमें W/m0 मिल जाएगा। अब इन दोनों को हम मोलारिटी के टर्म में लिख देंगे। ओके, अब टर्म में हम जब लिखेंगे तो कैसे आएगा कि भाई VL नीचे है तो नीचे रहेगा, W ऊपर ऊपर जाएगा, m0 नीचे रहेगा और मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमें ऐसी एक इक्वेशन मिलेगा कि जब सॉल्यूशन लीटर में हो, लीटर सॉल्यूशन की जब हम बात कर रहे हो तो द इक्वेशन इज m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये है। अब हम बात करेंगे कि अगर ये सॉल्यूशन लीटर में ना हो कि ml में हो जाए, तो ml में होगा तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा ml में सॉल्यूशन है डिवाइड बाय 1000 हम करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो VL होगा। इस इक्वेशन को हम इसमें रख देते हैं, इक्वेशन जो ऊपर वाला था उसके अंदर हम रखते ही हमें एक इक्वेशन मिलेगा, m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू ml इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब हम बात करते हो मिलीलीटर में किसी सॉल्यूशन की। अब जो है इसका यूनिट मोल पर लीटर है, सो टेक केयर ऑफ द यूनिट एज वेल, बिकॉज मोल पर लीटर कैसे हुआ, यहाँ पे मोल है और यहाँ पे लीटर है, तो यूनिट इसका मोल पर लीटर होता है। हम इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल भी हम देख ही लेंगे। एग्जाम्पल में क्या है उसको ध्यान से देखो। द सॉल्यूशन प्रिपेयर यूजिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 25 ml। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। हम देखो यहाँ पे जो मोलर मास है ना Na2SO4 का, यानी सोडियम सल्फेट का, वो में दिया हुआ है, वो कितना है 142। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, पहले तो इक्वेशन क्या है वो हम देखते हैं कि मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स हमें निकालना है, मोल्स हमारे पास है नहीं, हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास है और हमारे पास इसका वेट है, तो मोल कैसे निकालेंगे, एज पर रूल W/m0। m0 हमने ये फाइंड कर लिया, यहाँ से W है तो 5 डिवाइडेड बाय 142 हम करेंगे, वी विल गेट द मोल्स। मोल हमें मिल रहा है 0.035। अब सॉल्यूशन जो है हमें ml में दिया हुआ है, हमें उसको कन्वर्ट करना होगा लीटर में, तो वो भी कितना होगा 0.025। जब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन के अंदर रख लेंगे ना, इस वाले इक्वेशन के अंदर, देन वी विल गेट द वैल्यू 1.4 मोलर। तो जो मोलारिटी आई सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन की, जो हमने बनाया था 5 ग्राम को 25 ml में डिसॉल्व करके, वो 1.4 मोलर बना। क्लियर यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट टर्म में जाएंगे, तो नेक्स्ट टर्म वो हमारे स्ट्रेंथ। ओके, थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू प्रीवियस वन, W/V, V/V एंड मोलारिटी। इस टर्म में हमें क्या देखना है, इस टर्म में देखना है कि स्ट्रेंथ जो है पर्टिकुलर एसिड और बेस के आप कैसे डिफाइन करोगे, एंड ऑल्सो देयर इज वन रिलेशनशिप बिटवीन दैट मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ, सो विल टेक अ लुक ऑल्सो ओवर दैट। सो मास ऑफ सॉल्यूट जो होता है ग्राम के अंदर, अगर वो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम ले तो उसको बोलते हैं उस सॉल्यूशन की या उस जो हमारा मिक्सचर है उसकी स्ट्रेंथ। अब देखो यहाँ पे ये सेम है, आपको लग रहा होगा W/V से, है ना। सो डिफरेंस क्या है एक्चुअली दोनों के बीच में, वो हमें देखना है। अब जो W/V था उसके अंदर हम जो सॉल्यूशन का मास लेते थे वो ml में लेते थे और इसमें हम लीटर में लेते हैं, यही एक डिफरेंस है इसमें। सो इसका यूनिट ग्राम पर लीटर हुआ इसके अकॉर्डेंस में। अब हम जो है रिलेशन देखेंगे मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ के बारे में। मोलारिटी का डेफिनेशन हमें पहले पता है,
VL इंटू M0, ये मोलारिटी का डेफिनेशन था। अब यहाँ पे W बाई VL इज इक्वल टू स्ट्रेंथ हमने डिनोट कर दिया है। तो अगर हमें इसके इस बेसिस पे स्ट्रेंथ निकालना हो और स्ट्रेंथ को अगर हम सब्जेक्ट बना ले यहाँ पे, तो M इंटू M0 होगा। तो यूनिट इसकी जो रिलेशनशिप ये हुई कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द मोलारिटी एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी ऑल्सो टू गेट अ लुक ओवर दैट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मालिटी। जो नॉर्मालिटी टर्म है ना, सच में इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट द टर्म। इस टर्म में हम बात करेंगे इक्विवेलेंट जो सॉल्यूट वेट है उसका, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हुआ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट था। तो ये जो टर्म है ना, अब हमें इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है उसको देखना है। सो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल गया कि ये इक्विवेलेंट टर्म की एक अच्छी वाली डेफिनेशन बनाई है हमने। सो नॉर्मलिटी को डिफाइन एन से किया जाता है, कैपिटल एन से। सो हम लिखेंगे एन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दैट इज द टर्म। ये टर्म हमारे पास आई है एट द एंड। ओके, नॉर्मलिटी की हम जब ने जो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट था हमने इसमें टर्म को इक्विवेलेंट सॉल्यूट के वैल्यूज को इम्प्लीमेंट किया तब। अब एक और बात है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाली चीज, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, वी विल टेक अ लुक इन डिटेल। सो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एन फैक्टर। सो M0 बाय NF यहाँ से निकला हमारे पास। अब हम ये करेंगे कि इस वैल्यू को भी इसमें पुट कर देंगे। अब हमें क्या मिलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जो है रिलेशन एक छोटा सा निकलेगा नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में। अब देखो जो रिलेशन था वो W, ये वाली टर्म जो आपको दिख रही है, ये वाली टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म अगर मैं रिप्लेस कर दूं M से तो रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो बड़ा सिंपल है, ये रिलेशन क्या है, N इज इक्वल टू M इंटू NF, क्योंकि जो M की वैल्यू थी वो थी W डिवाइड बाई M0 इंटू VL। सो ये बड़ा ही अच्छा सा एक हमारे पास रिलेशन बन के आया है। उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक छोटा सा सम लेके। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 1.321 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट when it's mixed in a 100 ml of solution। अब देखो सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है Na2CO3। अब जो Na2CO3 का सॉल्यूशन जो है हमारे पास, उस सॉल्यूशन की हमें एन फैक्टर निकालना होगा। सो एन फैक्टर का मतलब क्या होता है, बेस कंडीशन में नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन। इस केस में क्या होगा, ये तो सॉल्ट है Na2CO3, सो 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस 2। सो इस केस के अंदर हमें जो मिलेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो मिलेगा, या हम बोल सकते हैं उसको जो एन फैक्टर हमारा निकलेगा वो 2 निकलेगा, बिकॉज सॉल्ट के अंदर हम इधर वी कैन टेक अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, समेशन नहीं, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेते हैं उनका। तो इसमें यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है। सो हम +2 -2 किसी में से एक को 2 ले लेंगे। सो इक्विवेलेंट हमारा 2 निकलता है। अब यहाँ पे जो है, सो हमें क्या करना होगा, ग्राम में जो वैल्यूज हमारे पास है उसको मोलर मास से डिवाइड करना होगा। मोलर मास 105.99 ग्राम है, 131 है तो 131 डिवाइड बाय 1.099 करेंगे तो 0.0124 हमें मिलेगा। उससे हम इक्विवेलेंट 2 है, इस वैल्यू के हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट 0.0249 इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। ये नॉर्मलिटी आ चुकी है हमारी अब तक की। सो नाउ वी विल स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड विच विल गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे ढूंढते हैं ना, वो हम देखेंगे अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सो द एन फैक्टर किस पर डिपेंड है, पहली बात तो ये। सो एन फैक्टर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्यूट। अब टाइप ऑफ सॉल्यूट या तो इधर एसिड है, इधर बेस है, इधर सॉल्ट है, इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है। ये टाइप ऑफ सॉल्यूट जब हमारे पास होगा तो उस पर एन फैक्टर डिपेंड करेगा। पहला है इन केस ऑफ एसिड, दूसरा हम देखेंगे इन केस ऑफ बेस, तीसरा हम देखेंगे इन केस ऑफ सॉल्ट एंड चौथा हम देखेंगे इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो पहला केस हम देखेंगे इन केस ऑफ एसिड। उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म। अब यहाँ पे क्या देखना है, HCl जो है वो डिसोशिएट होगा किस में, H+ प्लस Cl- के अंदर डिसोशिएट होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि HCl ओनली एक H+ आयन देता है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। सो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। अब बात करते हैं H2SO4 की। नॉर्मल कंडीशन, इन
नॉर्मल कंडीशन, अगर कुछ भी कंडीशन मेंशन नहीं है तो H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस के फॉर्म में डिसोशिएट होगा। तो इस केस में वो 2H प्लस हमें देगा, सो इसकी जो है एन फैक्टर होगी वो 2 आएगी। बट अगर मेंशन किया हुआ है कोई पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर कि जैसे H प्लस डिसोशिएट H प्लस प्लस HSO4 माइनस में हो रहा है, तो इस केस में H2SO4 की जो एन फैक्टर की वैल्यू होगी वो हमें 1 मिलेगी, बिकॉज इट गिव्स ओनली 1 H प्लस आयन। अब एसिटिक एसिड की बात मैं करूँ, जो एसिटिक एसिड है उसका जब भी डिकम्पोजिशन होगा तो H प्लस एक निकलेगा एंड उसके बाद C3COO माइनस, जिसे हम बोलते हैं एसिटेट, तो ये एसिटेट आयन भी निकलेगा। सो एक ही H प्लस मिल रहा है, बहुत ही वीक एसिड है ये, सो हमें इसका एन फैक्टर 1 मिलेगा। अब एक और चीज़ है जो शायद आपको नहीं पता होगी, बट आई विल लेट यू नो, H3PO4 जो है अगर उसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें 3H प्लस मिलेगा प्लस PO4 3 माइनस मिलेगा। ठीक है, सो इस केस के अंदर एन फैक्टर कितना आएगा, इसका एन फैक्टर 3 आएगा। सो व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ दैट वन, इट्स 3। सो इट इज़ वेरी इजी। अब बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि एन फैक्टर कैसे हमने निकाला इसका इन द केस ऑफ एसिड। अब हम स्विच करेंगे इन द केस ऑफ बेस। अब बेस में क्या है, वहाँ पे H प्लस की जो आयन थी वो, और यहाँ पे क्या है OH माइनस आयन गिवन बाय द बेस। अब देखो, अब जब NaOH का डिसोसिएशन होगा ना भाई, तो Na प्लस प्लस OH माइनस में ही डिसोशिएट करेगा। तो इस केस के अंदर हमें एक OH माइनस आयन मिल रहा है, तो विल से देयर इज अ 1 एन फैक्टर, और BaOH ट्वाइस है, सो Ba2 प्लस होगा प्लस 2 OH माइनस आयन लगेंगे। तो यहाँ पे 2 OH माइनस आयन है, सो विल गेट 2। अगर Al2 OH6 है तो क्या होगा, अगर Al2 OH6 है तो यहाँ पे देखो 2Al3 प्लस लगेगा प्लस 6 OH माइनस लगेगा। सो इस केस में एन फैक्टर कितना होगा, 6। सो अगर बेस है ना, तो बेस के केस में एन फैक्टर डिपेंड करता है कि हाउ मेनी OH माइनस आयन गिवन बाय द बेस। क्लियर। अब हम स्विच करेंगे अपने तीसरे केस के अंदर, जो है सॉल्ट। सॉल्ट ज़रा सा समझने लायक चीज़ है, कैसे हम वो समझेंगे। NaCl अगर डिसोशिएट होगा तो Na प्लस प्लस Cl माइनस में बनेगा, और इसकी डेफिनेशन क्या है इन द केस ऑफ सॉल्ट, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब देखो, इसका पॉजिटिव चार्ज +1 हुआ, इसका नेगेटिव चार्ज -1 हुआ। हमें क्या लेना है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें सिर्फ वैल्यू लेनी है, सिर्फ वैल्यू, चार्ज नहीं लेना है एन फैक्टर के केस के अंदर। तो इसमें वैल्यू कितनी है, 1। सो इसका एन फैक्टर बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो गया है, 1। मैंने आगे आपको एक एग्जांपल दिखाया था Na2CO3 का, जिसमें मैंने आपको बोला था मैं बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो दैट इज द सॉल्ट Na2CO3। अब देखो, इसको अगर हम जो है डिसोसिएशन इसका होगा तो 2Na प्लस लगेगा प्लस CO3 2 माइनस लगेगा। अब देखो 2Na प्लस लग रहा है तो इसका जो चार्ज है ना वो +2 बनेगा, इसका चार्ज -2 बनेगा। हम चार्ज को निगलेक्ट करते ही इसका एन फैक्टर हमें कितने मिलेगी, वैल्यूज जो होगी हमें 2 मिलेगी। एक और एग्जाम्पल, हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं MgCl2। Mg जो है 2 प्लस में जाएगा और Cl का डिसोसिएशन 2Cl माइनस में होगा। तो यहाँ पे भी +2 चार्ज होगा -2 चार्ज होगा, तो हमारे पास जो चार्ज आएगा, जो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा और जो वैल्यूज आएगी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव की, वो भी यहाँ पे भी 2 ही आने वाली है। इस केस को हम बड़े अच्छे से देखेंगे। अब Al का जो चार्ज है वो आप सबको पता है 3 प्लस में है, यहाँ पे 2Al है 3 प्लस, और 3 जो है SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा ना वो 6 प्लस यानी +6 आएगा, यहाँ पे -6 आएगा। सो दोनों वैल्यूज अगर हम ले, मैग्नीट्यूड ले, तो हमें क्या मिलेगा, 6। सो एन फैक्टर इन द केस ऑफ सॉल्ट हम ऐसे निकालते हैं। थर्ड, जो कि लास्ट जो हमारा केस है एन फैक्टर निकालने के लिए, वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब उसमें हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए कंडीशन के अंदर। सो अब देखो, ये MnO4 है, KMnO4, उसमें Mn की ऑक्सीजन स्टेट पहले हमें ढूंढनी। सो K की +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, पर कितने हैं, 8, तो इंटू 4 हम करेंगे, सो -8 हो जाएगा। यहाँ पे +1 है, एक इक्वेशन भी आपको पता होगा कि टोटल 0 होता है, तो K + Mn + 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Mn की मैं x कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 × 2 -8 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ।
x की वैल्यू अगर मैं लूँगा तो ये 8 इस साइड जाएगा, प्लस इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, कितनी आएगी +7। तो यहाँ पे ये वैल्यू +7 मुझे मिलेगी mn की, इन द केस ऑफ MnO4 और इन द केस ऑफ KMnO4। अब अगर मैं इसमें एसिड ऐड करता हूँ या मैं बोलूँ कि मैं इसको एसिडिक कंडीशन में देखता हूँ, तो देख रहे हो ये +7 से +2 में चेंज हो रहा है, तो +7 से +2 में ये चेंज हो रहा है। अब इसको मैं बेसिक कंडीशन में देखूंगा, तो बेसिक कंडीशन में देखने से क्या फर्क पड़ेगा वो देखो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ही है, Mn का x है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x -8 है, और यहाँ पे कितने हैं 2 -2 है यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू कितना होगा 2 -2 +8, तो यहाँ पे Mn की कितनी आएगी +6। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे MnO2 है, पहले हम ऑक्सीजन स्टेट एक बार ढूंढ लेते हैं +4। हमारे पास अब सारी ऑक्सीजन स्टेट अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम उससे एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे +7 से ये +2 हो रहा है, इट मीन्स वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन गेन ये कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एन फैक्टर। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एसिडिक कंडीशन में, तो इसका एन फैक्टर 5 होगा। बेसिक कंडीशन के अंदर ये जो है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, समझ रहे हो ना, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, सो इसका एन फैक्टर 1 होगा। इस केस के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखो 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 3 होगा। ये वाले जो टर्म्स है ना, ये एन फैक्टर डायरेक्ट बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस टर्म को आप अच्छे से समझ के रखना, बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल फॉर यूज गाइज, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए। अब हम देखेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें हम नॉर्मलिटी कैसे फाइंड करनी है वो हम देख लेते हैं। सो हम देखेंगे कि अ मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 प्लस वाटर इज प्रिपेयर्ड, सो फाइंड आउट द नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। हमें नॉर्मलिटी भी फाइंड करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। अब हमें मिलीमोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, सो पहले हमें ये डिफाइन करना है कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, एंड जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है। सो जो पहली बात है, हम देखेंगे कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है। इसमें जो सॉल्यूट है वो है H2SO4। सॉल्वेंट कौन सा लिया है, इसमें जो सॉल्वेंट है वो हमने लिया है वाटर। और ये जो लिखा है ना मिलीमोलर, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, मिलीमोलर इट मीन्स 1/1000 हुआ ना, सो 0.001 हुआ मोलर सॉल्यूशन ये बना। सो मोलारिटी गिवन है, तो फाइंड आउट करनी है नॉर्मलिटी। अब कैसे करेंगे, जो रिलेशन था पीछे जरा उसको रिमेंबर करो, रिलेशन क्या था, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। इसमें एन फैक्टर क्या होगा, सॉल्यूट कौन सा है H2SO4, वो 2H प्लस देगा, तो इसका एन फैक्टर कितना आता है 2। इसकी मोलारिटी कितनी दी हुई मुझे 0.001, तो डायरेक्ट आई गॉट द नॉर्मलिटी, वो आएगी 0.002 नॉर्मल सॉल्यूशन। तो ये जो नॉर्मलिटी बनती है इस सॉल्यूशन की वो 0.002 आएगी। अब हम देखेंगे कि ये तो नॉर्मलिटी की बात कर रहे थे, अब हम जो बात करेंगे ना वो बात हम करेंगे इसकी स्ट्रेंथ की, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। अब देखो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी था मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 19 ग्राम पर मोल होता है, ये आपको पता ही है। सो हम 0.001 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें जो स्ट्रेंथ मिलेगा वो मिलेगा 98 ग्राम पर लीटर। ये स्ट्रेंथ है और ये उसकी नॉर्मलिटी है। अब हम देखेंगे फॉर्मेलिटी के बारे में, दैट इज ऑल्सो अ यूनिक टर्म टू अंडरस्टैंड। अब देखो हमने नॉर्मलिटी देख ली, इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है। मोलारिटी हमने देख ली, क्या था मोल्स बाय वॉल्यूम, लीटर में ही था, ये भी लीटर में ही है, पर इसमें क्या है नंबर्स ऑफ 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पे FN, उसमें था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें था इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब जो FN है उसका क्या है वो हमें देखेंगे। सो जो नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। अब फॉर्मूला मास क्या है, फॉर्मूला मास इज नथिंग बट द ऑब्जर्व, इट मीन्स प्रैक्टिकल जो हमें मास मिलता है वो है। कैसे डिफाइन करेंगे वो हम समझेंगे नेक्स्ट, जब जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे हम इसको समझते जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि इस FN की वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, सो हमें ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन में है कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
हम एक रिलेशन यहाँ पे डिराइव करेंगे, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो है फॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच में। अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये W/VL है, ये पूरे का पूरा जो है यूनिट, ये पूरे का पूरा जो इक्वेशन है वो फॉर्मेलिटी के लिए, और मोलारिटी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो पूरे का पूरा WM0 × VL आता है। अब जो फॉर्मेलिटी है उसमें हम ऑब्जर्व मास देखते हैं, मोलारिटी में हम थियोरेटिकल मास देखते हैं। मोलर मास की बात करते हैं ना, तो वो व्हाट इज द मोलर मास? मोलर मास इज थियोरेटिकल मास, सो हम थियोरेटिकल मास देखते हैं। अगर हम इन दोनों का रेशियो ले F/m अगर करें तो क्या होगा? W/m0 m ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व मास इनटू वॉल्यूम ऑफ लीटर, ये हम करेंगे, ये इक्वेशन रखेंगे। तो यहाँ से वॉल्यूम और वेट कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा F/m = थियोरेटिकल मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व मास। इसको ही हम वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। वांट ऑफ फैक्टर क्या है? वांट ऑफ फैक्टर नथिंग इज बट जस्ट डिवाइड, व्हेन यू डिवाइड थियोरेटिकल मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व मास, और द रेशियो ऑफ थियोरेटिकल मास एंड ऑब्जर्व मास। अगर हमारे पास फॉर्मेलिटी गिवन है और हमें वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दी हुई है तो हमें मोलारिटी मिल जाएगी। अगर हमारे पास मोलारिटी गिवन है, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दी हुई है तो हमें फॉर्मेलिटी मिल जाएगी, और ये फॉर्मेलिटी मोलारिटी गिवन है तो हमें वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। वांट ऑफ फैक्टर मीन्स टोटल आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, अगर आपके पास सपोज समझ लो NaCl है, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना निकलेगा? 1 + 1 2। यही बात है सिर्फ। CsCl2 है तो उसका वांट ऑफ फैक्टर कितना निकलेगा? CS 1 है, Cl2 2 है, तो 1 + 2 3, दैट इज द वांट ऑफ फैक्टर। अब हम बात करेंगे ppm W/V एंड ppm V/V की। ये जो टर्म है ना वो सिमिलर टू दैट परसेंटेज W/V एंड परसेंटेज V/V। अब उन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 10⁶ है ppm, अगर हमें परसेंटेज में होता वो 100 से मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे जो 10⁶ है सेम, परसेंटेज जो था वो 100 में मल्टीप्लाई करना था। बस यही दो डिफरेंस थे। तो हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं उसका। अ सॉल्यूशन हैज़ कंसंट्रेशन ऑफ 0.25 ग्राम पर लीटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमें यहाँ पे ग्राम पर लीटर में लिखा है 0.25। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन इन ppm। सो हमें ग्राम में दिया हुआ है, हमें इसमें फाइंड करना है, पर वो लीटर में हमें ml में करना होगा। तो क्या करना होगा? पहले हमें जो यहाँ पे जो है सो 0.25 डिवाइड बाय 1000 हम करेंगे। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10⁶ हम करेंगे। सो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 250 मिलेगी। सो ये 250 ppm आया W/V का सॉल्यूशन। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जो देखेंगे वो होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। उसके साथ हम देखेंगे कुछ यूजफुल यूनिट्स, देन हम देखेंगे कि कुछ यूजफुल जो मॉलिक्यूलर वेट है जो हमें रिकॉल करने हैं, जो हमें याद करने हैं वो, एंड देन हम रिवीजन करेंगे उस दूसरे वाले वीडियो में। तो इसके अंदर हमारे बेसिक्स जो है वो कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे सॉल्यूशन पोर्शन के, एंड देन वी स्विच टू द एडवांस लेवल ऑफ द सॉल्यूशन पोर्शन। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please subscribe the channel and press the bell icon to get notified soon.